Once again, welcome back. We had started off with the chapter internal trade, right? And internal trade के अंदर अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है? We have completed what is internal trade. Then the two modes जो हमारा internal trade में आता है, one is first of all it is wholesale, यानी कि buying something in bulk and selling it to the retailers in chunks. The second is retail, यानी कि buying from the wholesaler and sending it across to the consumer. Then the link between wholesaler and retailer till, और हम लोग बच्चा अपने अकाउंट मतलब उसमें इन द बिजनेस लैंग्वेज वी कॉल इट एज अ सप्लाई चेन मोड. And supply chain is one of the very important, you can say, term. In fact मेरे मतलब कि कई लोग हैं जो कहते हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम करते हैं. तो सप्लाई चेन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर एनी बिजनेस. देन नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा दैट what are the different kinds of, now in the wholesalers we don't have anything kind, but in the retailers definitely we have the fixed, and we are also having those who are moving from one place to another, जिनको हम बोलते हैं itinerant, right? Then we have read about the services that each of these itinerant give to us, and उसके बाद जो आपके फिक्स्ड है, फिक्स के अंदर डिपार्टमेंटल एंड आपके मल्टीपल चेन, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. अभी तक हम लोगों ने इन्हीं सब चीजों को पढ़ लिया है. अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स, आई हैड टोल्ड यू, मेल ऑर्डर बिजनेस. Please confine to whatever is given in your syllabus. For example, your syllabus is this one. You have internal trade, we have done it. Types of trade, we have done it. Large, we have done it. इनके features हम कर चुके हैं. Now we are left with mail order and GST. The remaining is not there as per your syllabus. This is the मतलब कि ये जो है ये आपका शॉर्ट है फ्रॉम द CBSE ओनली. ये CBSE का ही शॉर्ट है, ठीक है? तो नाउ एज आई टोल्ड यू, पुराने जमाने में मतलब आजकल मैंने तो किसी को नहीं देखा, आई डोंट नो इफ यू know anyone. Mail order आजकल we can say, in fact now it has taken the name of the TV. Normally there is an advertisement in the newspaper, magazine, or there might be a circular. आपको जो है कोई circular दे दिया जाता है, मतलब catalog, and then you may be आपको बोला जाएगा, and through mail आजकल जैसे हम जेप्टो मंगवाते हैं या फिर ब्लिंकिट मंगवाते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, अपने मोबाइल से ऐप से सामान मंगवाते हैं. उसमें क्या होता है, हम लोग उसमें जो है वी यूज टू गिव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेमेंट मोड. ऑल दीज रेलेवेंट मतलब कि फीचर्स लाइक प्राइस, फीचर, डिलीवरी, टर्म्स ऑफ पेमेंट, सब कुछ दिया होता है. एंड उसके बाद जो बायर होता है, द बायर हैज टू सेंड हिज रिक्वायरमेंट. देयर आर टू मोड्स ऑफ पेमेंट. एक होता है पहले पे करो फिर लो, बहुत होता था फ्रॉड. और दूसरा होता था ऑन रिसीविंग यू विल बी पेइंग द मनी. There can be different alternative for receiving payments. First, the customer may be asked to pay full payment in advance. That is, आपको मनी ऑर्डर, पहले जमाने में वही होता था, मुझे अच्छे से याद है. was too small, but मुझे याद है मम्मा भेजती थी. वो पूरे बर्तन का सेट होता था जो बहुत सस्ता मिलता था comparatively from Tamil Nadu, because mama is very attached to Tamil Nadu, so she would be getting that. And दूसरा होता है when you are getting the मतलब की goods and you are paying. The second is VPP, value payable post. Under this arrangement, goods are sent through the post and delivered to the customer only on making full payment for the same. आज की डेट पर हम इसको COD के नाम से जानते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है? What is the difference between cash on delivery and VPP? Cash on delivery is a मतलब कि एक generalized payment mode है for everything. Whereas VPP होता है when the things are sent by post.
and you have to pay it to the postman. That is why it is VPP. Third, the goods may be sent through the bank, which is instructed to deliver the articles to the customer. In this arrangement, there is no risk of bad debt. The goods are handed over to the buyer only after he has made the payment to the bank. तो उसमें बैंक इन्वॉल्व हो जाती है और बैंक जो है वो सामान आपको देती है. तो ऐसा कई होता है. नॉर्मली पहले बहुत होता था. दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइम. ये उन्हीं के लिए होता है जिसमें छोटा मोटा इन्वॉल्वमेंट है. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर दैट आर पेरिशेबल और बल्की एंड कैन नॉट बी इजिली हैंडल्ड आर नॉट रिकमेंडेड. जैसे आप जो हो कोई ऐसी चीज मंगवा रहे हो जो खराब होने के चांसेस है. अभी भी मतलब कि आई डोंट नो अबाउट अदर एरियाज इन, मतलब वी हैव सर्टेन अरेंजमेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया फॉर बाइंग सर्टेन काइंड्स ऑफ थिंग्स. उनमें से जो चीजें खराब हो सकती हैं वो तो हम नहीं मंगवा पाते, लेकिन जो चीजें खराब नहीं होती हैं उनको हम मंगवा लें. ओनली द गुड्स दैट कैन बी ग्रेडेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड. ग्रेडेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है उसका, जैसे आपके जूते हैं, ठीक है, तो जूतों में जूता है, ठीक है. नाउ यू माइट बी हैविंग शूज ऑफ प्यूमा, एडिडास, एक्शन, रेक्सोना, बाटा, दैट्स अ कंपनी, ठीक है. एंड देन you might be having उसी उन्हीं के जो है they might be having different kinds of आपके अलग अलग. पहले बीच में उनका रेड कलर चल रहा था, मतलब बाटा इज रेड करके. तो there might be a particular product like it may be made of leather, it may be made of rexin, it may be made of fox leather. तो ये जो अलग अलग तरीके से बनता है ना, ये होता है आपका स्टैंडर्ड. एंड ग्रेडिंग होती है आपके साइजेस, 7, 8, 9, जो भी आप साइज पहनते हो वो होता ग्रेड, ठीक है. जैसे चावल में बासमती एंड परिमल, ये स्टैंडर्ड है, एंड उन्हीं के अलग अलग हो जाते हैं आपके ग्रेड. इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट लो कॉस्ट, इट कैन बी having the demand in the market and are available throughout the year, involve least possible competition and can be described through pictures. Normally उन्हीं चीजों को हम मेल ऑर्डर में लेकर आते हैं. जितने भी आपके टीवी के अंदर एड आते हैं, they all earlier were part of mail order, like bedsheets. आजकल वो इंस्टा में चल रहा ना, इंस्टा में चल रहा ना, वो मेल ऑर्डर के थ्रू आ सकता है. even though we are using the courier now, but that can be done through the mail order. वो आजकल एक वो नया ट्रेंड नहीं चल रहा इंस्टा में, so beautiful, so elegant, just looking like a wow, वो that's a mail order. that can be, मतलब कपड़े, anything which has a proper value. An important point is mail order business cannot be successfully carried out unless education is widespread, because only literate people can be reached through the advertisements on written communication. Like magazines जो पढ़ता होगा वही तो उसको देखेगा ना, जो मैगजीन पढ़ेगा ही नहीं उसको कैसे पता होगा. फर्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस. जो लोग मेल ऑर्डर करते हैं, ये मतलब कि दोज हु आर डूइंग ऑल दीज काइंड्स ऑफ बिजनेस विद लिमिटेड कैपिटल, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट ऑन बिल्डिंग और मशीनरी, आप सामान लेकर बेच सकते हो. एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन. जो लोग इन बिजनेस को करते हैं नॉर्मली दे बाय इट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और दे मे बी हैविंग देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग. लाइक अगर बुटीक है, अपने यहाँ पर बना रहे हैं एंड दे आर सेलिंग इट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. ओनली जो पोस्टल चार्जेस होते हैं वो आपके लगते हैं. Again, I'm telling you, class 11 postal charges, not the courier charges. There is a difference between courier. Courier हमेशा महंगा पड़ता है. अभी recently, last month, we have a marriage in our home
on November 16. So now that's a very घर की शादी है. What you call my husband's elder brother, नहीं, younger brother's daughter. बिल्कुल. तो हमारे में होता है कि जो लोग होते हैं सबको पहले से ही बुलाना, उनको साड़ी वाड़ी सब देना, जो भी मतलब वॉट एवर द रिचुअल्स. तो they had sent this mail and that they had sent through the post. अब अगर वो कुरियर से भेजते टू ईच एंड एवरी वन, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी वन हु इज अक्रॉस, तो आप सोचो एक एक इंसान को जो उन्होंने सामान भेजा, एक साड़ी, एक तो दैट वुड हैव कॉस्ट देम एटलीस्ट 200 रुपीज. बट इंडियन पोस्ट में दे हैड स्पेंड ओनली 8 रुपीज फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली. तो दैट इज व्हाई मेल ऑर्डर में हम पोस्टल को रखते हैं, नॉट द कुरियर, क्योंकि उससे फिर हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है. कुरियर हम तभी करते हैं व्हेन द कस्टमर सेज कि हम कुरियर चार्जेस बियर करने के लिए रेडी हैं, आप भेज दो, देन वी डू. नॉर्मली इट इज पोस्टल, इसीलिए उसको मेल ऑर्डर बोल रहे. सिंस नॉर्मली देयर इज नो क्रेडिट, 3 तरीके हैं. एक, पहला पैसा दो फिर सामान मिलेगा, पहला. दूसरा, सामान आपके हाथ में तभी दिया जाएगा जब आप पैसा दोगे, यानी कि इस हाथ लो उस हाथ दो. तीसरा, यू आर पेइंग टू द बैंक और बैंक से सामान कलेक्ट करो, यानी कि तीनों उसमें आपको जो है मतलब कि यू आर नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट, आपको कोई क्रेडिट नहीं लेना है. तो इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर है, उसका कोई नुकसान नहीं. एब्सेंस ऑफ बैड डेब्ट का मतलब यही होता है. Wide reach means if you are sending it through the postal services, you can send across India. Convenience for the customers, we can get at doorstep. But limitations, lack of personal contact. मतलब normally अभी तो nowadays we are having the WhatsApp and all. Earlier we did not have all these things. So there might not be a direct touch. You may not be able to see the product before buying, and the sellers cannot pay personal attention to the likes and dislikes of buyer and cannot clear the doubts through catalogs and advertisement. हम लोग सभी रेस्टोरेंट्स जाते हैं ना, सभी जाते हैं. तो जो फोटो बनी हुई होती है वैसा खाना मिलता है? नहीं मिलता है ना. तो देयर इज डिफरेंस. हाई प्रमोशन कॉस्ट, मतलब इफ द थिंग्स हैव टू बी गिवन टू एवरीवन, तो आपको बड़े बड़े नामी मैगजीन्स, न्यू मतलब उन न्यूज़पेपर्स में देना पड़ता है जिन्हें लोग पढ़ते हैं, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो सकता है. इफ द थिंग्स आर वन, जिसमें आपका सर्विस वगैरह की जरूरत है, वहां पर नो सर्विस होता है. मीन्स अगर चीज में कोई खराबी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, देन व्हाट यू विल डू? One example I'll tell you for this: no after sale service during the Diwali period or during all these festival period. Normally I get the things authentically बनता है, तो there are some people in Chennai जो बना के भेजते हैं. This is the same thing, मेल ऑर्डर का ही है, but they send it through courier, इसलिए मैं उसको मेल ऑर्डर में लेकर नहीं आ रही. वो उन्होंने क्या किया, इट वाज आई थिंक जन्माष्टमी एंड दे हैड सेंट इट, बट द थिंग्स वर, वो जो उन्होंने भेजा था वो सिले हुए थे. नाउ व्हेन आई आस्क्ड देम, दे सेड मैम हमारे यहाँ से तो जब निकले थे बिल्कुल ठीक थे, and they did not give me any refund or anything because you don't have any platform. Like अगर Zomato से सामान मंगवा रहे हो तो Zomato is responsible, at least वो हमें एक कूपन तो दे देता है, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ नहीं है. You don't have that satisfaction. Then credit facilities, if you want to buy it later, आप बाद में पैसा देना चाहते हो, कुछ ऐसा कुछ है, तो you don't have. Like today every product is available on EMI.
नहीं हो सकता. Delayed delivery, since it's through the post. And as I was giving you this example of our own thing, it took 28 days to reach. 28 days हमारे मतलब कि पहुंचने में हुआ. तो वो हो सकता है. पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज, चीटिंग. पैसा अगर आपने, ये वहां होता है जहां आपने पहले पैसे दे दिया, जहां आपने पहले पैसे दे दिया. हाई डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विसेज. मान लो बीच में बारिश हो गई, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, पोस्टल डिले हुआ, सामान भी डिले हो गया. सो दिस इज मेल ऑर्डर. नेक्स्ट इज आपका आता है अब जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट. और बच्चे आप लोग इन सब चीजों को जो हो, यू विल बी कटिंग. दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. कंज्यूमर कोऑपरेटिव इज नॉट देयर, राइट? सुपरमार्केट इज नॉट देयर. अब हमारे हैं. एंड वेंडिंग मशीन्स आर आल्सो नॉट देयर. वेंडिंग मशीन्स आपके होते हैं और एक मार्क में एक दो स्कूल्स में वैसे आए हैं, इवन दो इट्स नॉट एज सिलेबस. जो आपके बस स्टॉप में, मेट्रो पे या फिर एयरपोर्ट्स में होते हैं, जिसमें आप पैसा डालते हो एंड यू गेट द थिंग्स. राइट नाउ द लास्ट एंड important concept is goods and service tax. एंटायर पोर्शन जहां से ये स्टार्ट हो रहा, वहां से जहां तक एंड हो रहा, वहां तक ये इंपॉर्टेंट है. 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर सब में आता है. तो नाउ व्हाट इज जीएसटी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स? एज द मतलब दिस इज नॉट अ न्यू वन. इट वाज प्रपोज्ड वेरी अर्लियर बट इट वाज पास्ड ओनली ऑन July 1st 2017. So the government of India, following the credo मतलब the slogan of one nation and one tax. पहले क्या होता था, आपने सामान मंगवाया, अब आप जो हो दिल्ली में मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है. अब आपका जो रॉ मटेरियल है वो अलग अलग जगहों से भी आ रहा है. तो जितने आपके स्टेट्स को क्रॉस करता है एंड जितने क्रॉस करके जाता है, हर जगह पे आपको टैक्सेस अपने हिसाब से देखना पड़ता था. So they wanted to unify the market in order to have the smooth flow, and GST from July 1st, 2017 was implemented. The move aims to make the life easier for manufacturers, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है कि आपका टैक्स कम हो जाता है. मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स, हमारे लिए ओवरऑल कॉस्ट अगर कम हो गया, जैसे अगर आप एक सामान पहले खरीदते थे, जैसे अभी हम लोग एप्पल फोन बोलते हैं, तो दिल्ली के, इंडिया के अंदर इफ इट इज 1.5 लाख, इन दुबई इट इज लेस. दिस इज बिकॉज ऑफ द टैक्स. तो पहले ऐसा ही होता था कि दूसरे शहरों में एक चीज की दाम ज्यादा होता था, हमारे यहाँ कम, या हमारे यहाँ ज्यादा दूसरे यहाँ पे कम. नाउ देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी टू सम एक्सटेंट. आई रिपीट द वर्ड टू सम एक्सटेंट. This system is regarded as the most revolutionizing tax reform in Indian taxation history, because this has also played a key role in making the state accountable to its taxpayers. Effective taxation ensures public funds are effectively employed in fulfilling social objectivity for sustainable development. Now, ये वाला जो है, please, this you can learn. GST is a destination based 1 marker question है. Now what is the meaning of destination बच्चे? जहां से आप स्टार्ट होते हो और जहां आपका खत्म होता है वो डेस्टिनेशन है. यानी कि आपको टैक्स यहां देना है. आपको टैक्स कहां देना है? यहां देना है. दिस इज द डेस्टिनेशन. जहां पहुंच रहा है वहां पे देना है. The supply of goods and services from manufacturer to consumer has replaced. पहले क्या होता था, आपके मल्टीपल टैक्सेस होते थे, जो कोई सेंटर को जाता था तो कोई स्टेट को जाता था, thereby converting the country into a unified
Among another benefit is GST is expected to improve the ease of doing business in tax compliance, reduce the tax burden by eliminating tax on tax. पहले क्या होता था, आपने यहां से खरीदा, यहां टैक्स दिया, फिर उस पर जो दाम बढ़ गया फिर आपने यहां पर अलग से टैक्स दिया, तो दिस इंक्रीज, कोई सेल्स पर होता था, कोई स्टेट का होता था तो कोई सेंटर का होता, एंड अल्टीमेटली व्हेन इट रीच द डेस्टिनेशन तो जो उसका कॉस्ट होता था वो डबल हो जाता था, बट नाउ इट हैज रिड्यूस्ड. Among benefits, it is by eliminating tax on tax, improve tax administration, mitigate tax evasion, मतलब लोग टैक्स को बचाने के लिए दूसरे रास्ते से लेकर आते थे वो, and organized sector of economy and boost tax revenues. The GST has, जिस जिस चीज को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, प्लीज डू अंडरलाइन देम. द GST हैज रिप्लेस्ड 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब 8 सेंट्रल गवर्नमेंट डालता था और 9 स्टेट गवर्नमेंट डालता था पहले. मतलब एक गुड को यहां से स्टार्ट होकर यहां आने तक 17 टैक्सेस देने पड़ते थे, उसको हट गया. एंड 23 केसेस ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि अलग अलग आपके सब सब एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फाइलिंग मल्टीपल रिटर्न्स. और हर बार आपको हर जगह जब रिटर्न फाइल करना होता तो अलग अलग करना पड़ता, बट नाउ यू हैव टू ओनली फाइल टू GST. An assessment rationalizing the tax treatment of goods and service along from the supply chain from producer to consumer. GST comprises CGST, again important. CGST matlab the one you are giving to the central. State GST, subsuming levies previously charged by central and state government, अब मतलब की ये है. GST यानी कि CGST plus SGST is charged at each stage of value addition, and supplier of sets the levy on inputs in the previous stages of value chain through tax credit mechanism. मतलब अगर आपका यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, दिस इज द सोर्स. सोर्स का मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है. दिस इज डेस्टिनेशन. तो जिस स्टेट के थ्रू जा रहा है वहां आप स्टेट GST डाल दो, लेकिन उसको पहले कैलकुलेट करते थे टैक्स के ऊपर टैक्स. अब ऐसा नहीं होता, किस सप्लाई के थ्रू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें देना पड़ता. The last dealer in supply chain passes on the added GST to consumer. यानी कि अगर ये वाला लास्ट और यहाँ हम मतलब कि कंज्यूमर आता, तो ये हमारे को जो है ऐड करके देता. पहले क्या होता था, यहीं पे एडिंग हो जाती थी, तो जब कंज्यूमर तक आता था तो उसकी कीमत जो है वो डबल ट्रिपल हो जाती थी. The provision of availing input credit at each stage of value chain helps in avoiding cascading effect, tax on tax, which is expected to reduce the prices of commodities. जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपका जो है पहले 100 रुपए की चीज 200 की पड़ती थी, अब 100 रुपए की चीज 150 में पड़ जाती. ऑयल पे सबसे ज्यादा फर्क आया है, ऑयल पे सबसे ज्यादा, एडिबल ऑयल पे. दिस इज व्हाट दे हैव डन. नाउ व्हाट आर द की फीचर्स, मतलब व्हाई इट हैज बीन डन, ये पूरा आपका है. दिस इज ऑल, दिस इज नॉट देयर, मतलब ये आपका नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो. What it has done is the territorial spread of GST is whole country. सभी स्टेट्स ने एक बार में एक्सेप्ट नहीं किया था, बट स्लोली स्लोली दे रहा. GST is applicable on supply of goods and services as against the present concept of tax on the manufacturer or sale of goods on the provision of services. पहले क्या होता था, जब सामान आप बना रहे हो या बेच रहे हो या प्रोवाइड कर रहे हो उस पर होता था. ना होता व्हेन यू आर सप्लाइंग इट, यानी कि होलसेलर से रीट मतलब कि कंज्यूमर तक का जो सप्लाई चेन है उसमें ऐड होता. इट इज प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड, यानी कि एंड में जहां जा रहा वहां पर. पहले होता था जहां ओरिजिनेट हो रहा वहां से टैक्सेशन आपकी स्टार्ट होती. Import of goods and services is treated as interstate supply and would be under IGST. जो आपके कस्टम ड्यूटी होता था अब उसके साथ में आपका IGST होता है.
CGST, SGST, and IGST are levied at rates mutually agreed by center and states under the aegis of GST Council. 5% जो आपके बिल्कुल दूध, बच्चों का सामान, इन सब पर आपका 5% रहता है। देन जितना जितना आपका लग्जूरियस गुड हो जाता है उतना आपका जीएसटी बढ़ जाता है। बट जीएसटी एक बार में एंड में लगता है। पहले क्या होता था, टैक्स पर टैक्स लगता, देन आपका 12%, 18% एंड सबसे हाईएस्ट आपका 28 लाइक लग्जूरियस प्रोडक्ट्स लाइक व्हीकल्स। एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू SEZ आर जीरो रेटेड, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपका कंपनी है अंडर MSME, वहां पर कुछ नहीं होता। There are various modes of payment of tax available to the taxpayer. आप क्रेडिट कार्ड, RTGS, किसी से भी आप पे कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो क्लेम इट लेटर ऑन। और पहले क्या होता था, आपको अलग अलग जगहों पर क्लेम करना पड़ता था, अब आपको सिर्फ एक जगह पर क्लेम करना पड़ता है। यू नीड टू हैव द GST नंबर विद यू, और जहां आपने पे किया, लाइक मैंने कोई सामान खरीदा, अभी रिसेंटली माय सिस्टर हैड गॉन टू, मतलब उनके घर में कुछ डेथ हो गई थी, तो दे हैड गॉन टू दिस, हैदराबाद गए थे, तो आई टू बुक द टिकट्स ऑन, इमरजेंसी में हम लोगों ने एयर का भरा था, तो व्हेन इट वाज, तो एयर पर वी आर पेइंग द टैक्स, वी हैड टू पे द टैक्स। लेटर ऑन वी कैन, इफ आई हैव द GST नंबर आई कैन गेट दैट। तो ये जो एंड होता है वहां पर आपका GST लगता है। पहले क्या होता था, सोर्स में ही स्टार्ट हो जाता था। So this is how GST is done. How we are benefited? Overall हमारा टैक्स बेनिफिट कम होता है, हिडन टैक्सेस नहीं होती है। Then there is an uniformity. नेचुरल है कि पैसा अगर हम टैक्स में कम देते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड, मतलब जो हाथ में पैसा है वो एजुकेशन, एसेंशियल नीड पर हमारे लिए होता है। वी हैव वाइडर चॉइस। Then increase economic activity and more employment opportunity. This is what GST is. ये एक बार आप इस फैक्ट को पढ़ लीजिए जस्ट। GST aims to subsume a plethora of taxes. Plethora मतलब number of taxes across the country, make goods uniformly priced across India. As I said, इवन अभी भी आप देखोगे ना, पेट्रोल के प्राइसेस, इट इज डिफरेंट इन ऑल द डिफरेंट एरियाज। गुड़गांव जाओगे वहां अलग है, दिल्ली में अलग है, यूपी में अलग है, एंड दिस इज बिकॉज, बट फिर भी अब तो बहुत नॉमिनली फर्क होता है। पहले बहुत फर्क होता था, मतलब इन दिल्ली इट वाज अराउंड 40 एंड इन मुंबई इट वाज 70। पहले इतना डिफरेंस रहता था, बट नाउ देयर इज नॉमिनल डिफरेंस। With implementation of GST, luxury goods have become costlier but mass consumption cheaper. जैसे दूध है, पहले क्या होता था, दूध हो या फिर आप व्हीकल खरीद रहे हो, आपका जो टैक्स होता था वो सेम होता था। बट अभी क्या है, दूध आपका एसेंशियल है, गाड़ी आपकी लग्जरी है, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्सेस सेट होती है। GST इज नॉट टैक्सेशन ऑफ एट सोर्स, इट इज अ डेस्टिनेशन, यानी कि कंजम्पशन जो लास्ट में आ रहा है। If a product is manufactured in Tamil Nadu, travels through the country before it reaches Delhi, where the buyer or consumer pays tax for it. Both center and state have their share in this tax. The Indian GST will have a mechanism of matching invoices. Input tax credit of purchased goods and services will be only available if the taxable supply is received by the supplier. The GST network is a self-regulating, not only checks fraud and tax evasion, also brings more businesses into formal economy. मतलब पहले क्या होता था बच्चे, आपके जो कई बिजनेसमैन जो है फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं आते थे, अनस्ट्रक्चर्ड रहते थे। द रीजन इज कि अगर वो फॉर्मल में आते हैं तो उनको बड़े सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो वो घर में सामान मैन्युफैक्चर किया एंड उन्होंने बेच दिया। दे वुड नॉट बी यूजिंग अ प्रॉपर, मतलब कि सिस्टम। जैसे हमने MSME पढ़ा था, हमने माइक्रो स्मॉल पढ़ा था,
उसमें हमने पढ़ा था कि देर आर सो मेनी, तो वो नहीं आते। द रीजन इज कि दे हैव टू पे द टैक्सेस। अभी क्या है, टैक्सेस आर नॉट एट सोर्स, टैक्सेस आर एट डेस्टिनेशन। तो उनको फायदा भी होता है, तो उनको लगता है कि दे आर ऑल्सो, तो उनको दूसरे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लाइक उनको लोन मिल सकता है, सब्सिडी मिल सकता है। तो नाउ दे आर कमिंग इन टू द फॉर्मल इकोनॉमी। फॉर्मल का मतलब है when you are following the rules and regulations, when you have registered yourself, आपने अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को रजिस्टर कर रखा है, तो आप टैक्स भी दे रहे हो और आपको बेनिफिट भी मिल रहा है। इनफॉर्मल में क्या होता है, ना आप टैक्स देते हो और ना आपको बेनिफिट मिलता है। और कंज्यूमर के लिए नुकसान क्या है, अगर आपने कोई गलत चीज खरीद ली है तो देन देयर इज नो वन टू टेक द कॉल। Anti-profiteering measure is one of the key features of recently implemented GST law. मतलब पहले वही था कि आपने अगर सामान खरीदा बिना बिल के, तो हो सकता है कि आपने बिना बिल के थोड़ा पैसा कम किया, कंपनी वालों को फायदा मिल जाता था, बट नाउ इट इज नॉट देयर। These measures prevent entities from making excessive profit. Entities मतलब कंपनी। Since GST along with input tax credit is eventually expected to bring down prices, a national anti-profiteering authority is to be set up. मतलब वो देखना चाहते हैं कि अभी भी ऐसा तो नहीं है कि जो कंपनीज हैं या फिर जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, दे आर टेकिंग अननेसेसरी एडवांटेज, and also entities that hike rates inordinately citing GST will be checked. Like ये ना, अगर आप लोग इंस्टा देखते हो ना, तो उसमें काफी चीजें ऐसी आती हैं जिसमें बताया जाता है कि कई बार इफ यू आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में आप जीएसटी लगाते हो, उसके बाद देर इज वन मोर विच इज कॉल्ड एज सर्विस टैक्स। आपको पता है, एज पर द रूल सर्विस टैक्स इज नॉट, मतलब कि सर्विस टैक्स जो है वो आपकी मर्जी होती। कई रेस्टोरेंट में क्या होता है, आप सर्विस टैक्स भी दे रहे हो, देन यू आर ऑल्सो पेइंग टू द टिप्स टू द वेटर। आप देखो, 100 रुपए का आपने एक दाल मंगवाया, उसने उस पर जो है जीएसटी भी लगा दिया, उस पर सर्विस टैक्स भी लगा दिया, वो 200 रुपए का बन गया। फिर आप 25 रुपए, मतलब 20 रुपए जो हो आप, मतलब की और गिविंग टू द टिप, यानी कि 100 रुपए की चीज को आपने 250 रुपए में खाया। तो जीएसटी से ये एक फायदा होता है दैट देर इज यूनिफॉर्मिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैट आपका पहले अलग होता था, दिल्ली में 30% था, यूपी में 40%, नहीं यूपी में था ही नहीं। तो दिल्ली में अगर आप रेस्टोरेंट में दाल खाते थे 100 रुपए का पड़ता था, यूपी में 60 रुपए का पड़ता था। तो यूनिफॉर्मिटी आ गई। देन ये जो एक्स्ट्रा एडेड जो मतलब कि जीएसटी के नाम से जो मतलब कि किया जाता है, उसको देखना। अभी वो हुआ नहीं है, बट इट विल बी डन। जीएसटी कमीशन जो है वो सेटअप होगा। नॉट एवरी प्रोडक्ट हैज टू बी गिवन 18%। जैसे हम लोग एजुकेशन में डालते हैं ना, तो 18% जीएसटी डालते हैं। तो देर आर सम, मतलब की एरिया जहां वो कहते नहीं हमें तो जीएसटी देना पड़ता है। इफ यू आर पेइंग बाय क्रेडिट कार्ड, देन ऑल्सो दे से 18% जीएसटी देना पड़ता है। सो टू चेक वेदर दे आर रियली एप्लीकेबल और नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ, जो नेशनल मतलब की जीएसटी कमीशन है वो सेटअप हो। अब ये है आपका जीएसटी काउंसिल। इसमें आपके जो है, दिस इज मतलब कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन। इसमें 1 1 मार्क में आएगा, 1 1 मार्क में। द चेयरपर्सन यानी कि उसका जो हेड है वो है फाइनेंस मिनिस्टर, अभी निर्मला सीतारामन, राइट। द वाइस चेयरमैन इज टू बी चूजन बाय मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मेंबर्स होते हैं मेंबर्स ऑफ मतलब की स्टेट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन। कोरम इज 50%, टोटल आपकी 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स बन के आपका एक ग्रुप बनता है। सेंटर 1/3 लेता है, स्टेट 2/3 लेता है। एंड डिसीजन कोई भी लेना होता है तो देर इज अ वोटिंग सिस्टम, जिसमें 75% जो मेजोरिटी देता उनके हिसाब से। द काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू जीएसटी इंक्लूडिंग रूल्स एंड रेट्स। मतलब ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है।
So these are the common features. इसके अंदर आपको जो है GST full form, when it was implemented, then what are its main aim, it is a destination वाला, आपके कितने मतलब कि टैक्सेस को उसने रिप्लेस कर दिया है, 17 मतलब आपके जो 8+9+23 केसेस उनको वो, एंड देन CGST इज फॉर द सेंटर, SGST फॉर स्टेट्स, I इज फॉर द इंटरनेशनल आपके जो है। देन उसके बाद आपके काउंसिल का कौन हेड है ये, एंड देन 5, 12, 18 एंड 28 जो मतलब आपका जो स्लैब है ये, these are the very important points from examination point of view. This is what the entire chapter is. This right now the role of chambers जो है ये खत्म हो चुका है। पहले रोल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन जो था, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरनल ट्रेड को कौन देखता है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए तो यू आर हैविंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, लेकिन इंटरनल को कौन देखता है, तो इट इज दी मतलब की जो आपके कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनके अंडर आता है आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जो कोशिश करता है कि ये जो सप्लाई चेन है फ्रॉम द होलसेलर टिल द कंज्यूमर विदाउट एनी डिस्प्यूट इट इज डन, the benefits are going to the manufacturers, to the wholesaler, to the distributor, to the retailer, and of course to the consumer. It is the one which regulates, जो पहले हमारे, अभी तो हमारे पास SGST CGST है, पहले क्या होता था, आपका एक सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाता था, तो there used to be octroi, toll tax ऐसे होते थे, अब तो ये सब कुछ रिमूव हो गया है। Then they also try to negotiate, वो लोग ये भी कोशिश करते हैं नेगोशिएट करने की, कि हम लोग जब मतलब कि बिजनेस करते हैं, मान लो कि मेरा बिजनेस यूपी के साथ है, उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश में से फिरोजाबाद के साथ, तो फिरोजाबाद के अंदर मे बी आई एम नॉट मतलब कि हैप्पी, वहां पर जो है रोड्स नहीं है, वहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो मैं जो गवर्नमेंट है उसको मैं बोल सकती हूँ दैट दे कैन बिल्ड अप, मतलब दे कैन गिव दीज फैसिलिटीज, तो दे ट्राई टू ईज आउट द बेनिफिट, मतलब की जो प्रॉब्लम्स है उनको ईज आउट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट द रोल ऑफ चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री डज. So this is the entire chapter, internal trade. So I have been repeatedly telling you कि what are the important thing, तो आप लोग उन्हीं चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे आज हम लोगों ने पढ़ा है, we have read about GST, तो GST के अंदर as I have told you, GST उसके slab rates, उसका aim वो जरूर पढ़िएगा, because this is one of the expected questions in your exam. With this, the entire chapter is over.